Hello, Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. I welcome you all in today's learning session. In this session, I'm going to discuss with you question number 3 of paper 6, that is Cambridge IGCSE. And this is the year 2025, and the variant is of May, June 6 to. Okay, so let's discuss question number 3, that is of salt analysis. So I have directly jumped to question number 3, which is of a salt analysis. Let's have a look at the question, right? So here goes the question. Two solids are provided, basically solid J and K. So the formula of solid J has been written. It is iron to iodide. Now he's saying that the examiner basically that sodium hydroxide is added dropwise and then in excess. So what observations are we going to get? Dropwise and in excess. इसके लिए हमें एक key provide की जाती है for cations and anions. So I'm going to show you the whole key which is provided at the end of this paper. So now I'm splitting the screen into two equal halves. All right. So it is iron 2. I'll directly jump towards iron 2 and see what observations have been observed for this. Okay, it says sodium hydroxide. Let's have a look at it. It is green precipitate and then it is insoluble in excess. ठीक है, तो हम इसे as it is ही लिख देते हैं. So we are going to write green precipitate. Okay, this is green. And when in excess, तो हमें क्या पता चला था, ये आप देख लें, insoluble. So we will see no further change क्योंकि soluble है हुआ ही नहीं है. हम इसका लिखेंगे no further change. Why? क्या वजह हो सकती है? Because precipitate remains over there. अब ये भी लिख सकते हैं कि precipitate remains. ठीक है? Okay. So now let's move towards the next part, that is to the second portion of solid J. The student add 1 centimeter cube of dilute nitric acid followed by few drops of barium nitrate. अच्छा. So now first of all what we are going to do, हम दो वर्ड से फोकस करेंगे, नाइट्रिक एसिड, ये देखिए, और बेरियम नाइट्रेट. पहली बात है ये दोनों चीजें किस इनाइन के लिए यूज होती हैं, हम इसमें जाएंगे और चेक करेंगे एक बार. ये देखिए, आई एम नाउ एक्सपेंडिंग दिस की. ये देखिए, बेरियम नाइट्रेट एंड दिस थिंग, ये देख लें. ये मैं इस पे टिक करता हूँ और छोटा टिक इस पे करूँगा. ये बेसिकली सल्फेट के लिए बेसिकली ये दोनों रिएजेंट्स यूज होते हैं फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट. इज सल्फेट प्रेजेंट इन आवर कंपाउंड? I'll quickly go towards my compound. What my compound is? It is iron 2 iodide. So, according to this compound, no sulfate is present. No sulfate is over there. So, what will I get? मैं लिखूंगा कि I will see no change. ठीक है? Because की क्या वजह, सल्फेट है ही, no change. Okay. Next. उसके बाद वो कह रहा है कि to the third portion, student adds 1 centimeter cube of nitric acid followed by a few drops of silver nitrate. I'll again focus on these two words, nitric acid and aqueous silver nitrate. So what these reagents are used for basically? I'll again consult the key. ये देख लें. It is used for chloride, iodide, bromide and iodide.
तीनों के लिए बेसिकली ये यूज होते हैं। अब इनमें से कौन सा वाला है देखते हैं। तो हमारे कंपाउंड में क्या है, बेसिकली आयोडाइड है। ओके, अब आयोडाइड के साथ क्या होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन, लेट्स लुक एट द रिजल्ट्स। आयोडाइड के साथ होता है बेसिकली येलो। तो व्हाट वी विल गेट येलो प्रेसिपिटेट। ये देखने में सर्कल इज what will I write over here? I will simply write that yellow precipitate will form. ये देखो, yellow precipitate. Okay. To the fourth portion of solution J, the student adds 1 centimeter cube of aqueous chlorine. Okay. Observations. अब स्टूडेंट इसको देखें, कंपाउंड हमारा कौन सा, आयरन टू आयोडाइड। बस सिंपली इसका मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ, आयरन टू आयोडाइड। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, FeI2 प्लस Cl। ठीक है। ओके, एज यू नो दैट, मैं अब आपके सामने प्रोडक्ट टेबल ओपन करता हूँ। ये देखें कि क्लोरीन इज अबव आयोडीन, तो इट कैन इजीली डिस्प्लेस आयोडीन इन इट्स आयनिक कंडीशन। इसके आयंस को बेसिकली रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज हेलोजन में जो एलिमेंट्स अपवर्ड होते हैं दे कैन डिस्प्लेस द लोअर एलिमेंट्स। तो क्लोरीन हैज हाई रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू आयोडीन। इट कैन रिप्लेस iodine from iron. What compound are we going to get? We are going to get iron chloride, iron 2 chloride like this, and iodine solution will come out as a result. ठीक है, तो इसका कलर होगा बेसिकली ब्राउन कलर होगा। ठीक है, तो पहले ये क्या होगा, ब्राउन कलर नहीं होगा, तो इवेंचुअली आफ्टर दिस रिएक्शन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व ब्राउन कलर। आई एम गोइंग टू शो यू द कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। ये देखिए इस तरह का होता है, ये देखिए येलो ब्राउन। So we can write that a solution of yellow slash brown depends on the intensity, brown will form। ठीक है, तो दिस विल बी द कलर चेंज। ठीक है, ये मैं नीचे वर्ड्स में लिख भी देता हूँ, दिस इज बेसिकली आयरन टू आयोडाइड and chlorine has basically what, higher reactivity than iodine। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद अब हमारे पास है सॉलिड के। ठीक है, तो सॉलिड के पे बेसिकली क्या हो रहा है, डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। ओके, नाउ टेस्ट 1 के क्या रिजल्ट हैं, लाइलेक कलर्ड फ्लेम। ये सिंपली क्या हो सकता है, लेट्स लुक एट द टेबल। दिस इज पोटाशियम आयन। ओके, दिस इज व्हाट, पोटाशियम आयन ड्यू टू लाइलेक कलर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेसिकली स्टेट द कंक्लूजन अबाउट सॉलिड के दैट कैन बी मेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट 2। अब हम टेस्ट 2 को देखते हैं। इन टेस्ट 2 व्हाट द एग्जामिनर इज सेइंग, the remaining solid K is dissolved in water to form solution K and it is divided into two portions. अब वो two portions में divide कर दिया गया है। So in the first portion, basically sodium hydroxide is added, then it is warmed और red letter से पर पास रखा गया। Okay, तो observation क्या है, basically red letter से पर remains red। Okay, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की देखते हैं रिजल्ट्स ऑब्जर्वेशन, किस किस के साथ ये रिएक्ट कर फ्रॉम द टेबल। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली किसके साथ रिएक्ट करता है, ये देख लें, एल्यूमिनियम, अमोनियम, कैल्शियम एटसेट्रा। यू कैन सी द होल लिस्ट। ओके, तो बेसिकली किस आयन के साथ अमोनिया प्रोड्यूस होती है, अमोनियम आयन के साथ। ठीक है, और अमोनिया गैस का टेस्ट क्या होता है, इट टर्न्स डैम रेड लेटर से ब्लू। अब जब ब्लू हुआ ही नहीं है, इसका क्या मतलब है कि नो अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस। ये देख लें,
और जब अमोनिया गैस प्रोड्यूस ही नहीं हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका मतलब है कि अमोनियम आयन भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अब ये मैं आपको एक लिंक बना के दिखाता हूँ, ये देख। वी आर हैविंग लाइक एक आसान सा लिंक है, अमोनियम आयन है। ठीक है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, हमें क्या मिलनी चाहिए, अमोनिया गैस। ये बेसिकली क्या करती है, टर्न रेड किसको, सॉरी ब्लू किसको करती है, रेड लिटमस पेपर को। ये एक्चुअल टेस्ट है। जब ब्लू हुआ ही नहीं है, इसका मतलब है ना अमोनिया गैस बनी है, आई एम पुटिंग अ क्रॉस। और जब अमोनिया गैस नहीं बनी तो अमोनियम आयन भी नहीं है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अमोनियम आयन इज एब्सेंट। ठीक है, ये कंक्लूजन हम अ, निकाल सकते हैं इसमें से, अमोनियम आयन इज एब्सेंट। ठीक है। आई हैव क्रिएटेड दिस लिंक फॉर यू। ओके, so what can we write, that K does not, solid K does not, just wait a second, oh, sorry, yes, solid K does not contain ammonium ion। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। ठीक है। ओके, आइडेंटिफाई द गैस इन टेस्ट थ्री। नाउ लेट्स रीड what is test 3 all about. Okay, so I'm just skimming and scanning the whole part. Okay, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया गया और piece of aluminium foil, and then it is warm. अब now class, if you remember the key, कि थ्री थिंग्स बेसिकली किस एनाइन के लिए यूज होती है, नाइट्रेट के लिए, ये देखना है। फॉर नाइट्रेट दीज थ्री थिंग्स आर यूज एंड अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस। और अमोनिया गैस क्या करती है बेसिकली, इट टर्न डैम रेड लिटरस एसिड ब्लू। और ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है कि इट हैज टर्न द डैम रेड लिटरस एसिड ब्लू। तो दिस मीन्स के इसमें नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट आयंस हैं तो उन्होंने अमोनिया गैस बनाई है और उन्होंने चेंज किया है। ठीक है। आइडेंटिफाई द गैस, द गैस विच हैज बीन आइडेंटिफाइड इज बेसिकली ammonia. I'm writing down its name as well as the chemical formula. ठीक है। Okay, identify the solid K. Since we have figured out all the ketynes and anions, so two of these are present, one is potassium ion and the other is nitrate ion. So it is potassium nitrate basically। ये आप देख लें, KNNO3, तो पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये बेसिकली। Okay, class, I have completed the question. So I hope you all have understood it quite well. So I'm ending the session over here. ठीक है। और ये मैं एंड पे दो आयन चित्र जो इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है। So now practice these questions by yourself. And if you have any queries, you can come to me or contact me. Okay, Allah Hafiz. Take care.